Hello, welcome to this online class. Class 4, subject Science, Lesson 6, Insects, and today's topic, harmful insects. In previous video and even live class, you already studied about there are three types of harmful insects. One is disease spreading, second is blood sucking, and third one is the stinging insect. So today we are going to learn about the stinging insect, but first we revise, okay? Come on, listen carefully and observe things. So we learned about the useful insects. There are four useful insects. One is honeybee, second silkworm, then lac insect and ladybird beetle. Okay, four हमने देखे थे. So honeybees, we get honey from honeybees, and all of you know the what is nectar. Nectar means flower produce a sweet liquid that is called nectar, and honeybee collect this nectar and carry this nectar into the beehives, and after that special collector of the honeybees collect honey from the beehives and we get honey. Okay, so after that silk moth हमने देखा था. Silk moth grows in mulberry leaves, and the silk moth secrete a liquid which changes into a fine thread, and the moth weaves a cover around itself, body के ऊपर cover करता है thread like, and that cover is called a cocoon. And after this collection of cocoon, after some process we get silk from silk moth. Okay, lac insect usually grow on banyan tree, बरगद के पेड़ पे होते हैं, and they secrete a semi-solid substance called lac. And lac is used in painting, varnishing, and printing ink, and for making bangles and similar things. Okay, तो ये हमने देखा था, just revise कर रही हूँ. And fourth number, ladybird beetle. It eats a large number of pests that are harmful for plant. Plant के लिए जो जितने भी harmful होते हैं insects, वो ये खा लेता है ladybird beetle, and that's why our crops are safe from other insects. And we learn about the apiculture and sericultures. So rearing or breeding of honeybees for collection of honey is called apiculture, and while rearing silkworm for getting silk is called sericulture. So keep this in your mind. Then we learned about the types of these insects. Once again I am showing you honeybee. Second, here is the पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ. दिस इज़ हनीबी का पिक्चर है. दिस इज़ लाक इंसेक्ट, दिस इज़ सिल्कवर्म, एंड दीज आर ककून. वाइट कलर के जो दिखते हैं ककून है. एंड लेडी बर्ड बीटल इट्स लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट प्रेजेंट इन द प्लांट. तो हमारा क्रॉप सेफ रहता है बिकॉज ऑफ दिस लेडी बर्ड बीटल. ओके, तो चलो नेक्स्ट हम टर्न करते हैं पेज. हार्मफुल इंसेक्ट वी लर्न ऑलरेडी. डिसीज स्प्रेडिंग इंसेक्ट, that is number 1, houseflies. Houseflies sit on garbage or animal excreta and they gather germs. पूरे germs इकट्ठा उनके हो जाते हैं, and they carry these disease causing germs on their feet and bodies. अपने body और feet के ऊपर वो carry करके ले जाते हैं. When these flies sit on any food atom or present in the water, तो वो क्या होता है, this disease causing germs get transmitted to the human when they consume such infected food. जब इस तरह का फूड और वाटर हम लेते हैं then we got disease, है ना, तो हमें डिसीज़ हो जाता है. और इससे होने वाले डिसीज़ के नाम you have to note down: डायरिया, कॉलरा एंड जॉन्डिस. these 3 disease causes for किससे होता है, हाउस फ्लाई से होते हैं. तो देन वी लर्न अबाउट द मॉस्किटोज़ के बारे में देखा था. मॉस्किटोज एंड सम अदर इंसेक्ट स्प्रेड डिसीजेज थ्रू बाइट्स, है ना. मॉस्किटो के बाइट करने से हमें होता है मलेरिया एंड डेंगू. सो वी लर्न अबाउट द मलेरिया इज स्प्रेड बाय द फीमेल एनाफिलस मॉस्किटोज कॉल्ड मलेरिया, कॉज बाय मलेरिया. और जो दूसरा हमने देखा था एडीज मॉस्किटो अगर काटता है तो उससे हमें कौन सा होता है, डेंगू होता है. ओके, तो disease spreading insects are, one is housefly and second is mosquito.
तो अभी आगे बढ़ाते हैं हम ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स। ओके, ये जो ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं दे आर जनरली विंगलेस होते हैं, ये विंगलेस ही होते हैं, उनको विंग्स नहीं होते हैं। सच इंसेक्ट आर नोन एज फ्लीज। क्या कहते हैं उनको? विंग्स। विंगलेस होते हैं, फ्लीज कहते हैं उनको। ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, सम ब्लड सकिंग इंसेक्ट आर विंगलेस, such insects are known as fleas. Okay, and the example given on your slide, see the picture and the insects also: head lice, bed bug, dog fleas and cat fleas. Okay, ये आपने देखे भी होंगे सभी insects, but आपको नाम नहीं पता होगा. Now understand. Okay, learn also. So fleas found on a rodent like rats can spread a very dangerous disease known as the बुबोनिक प्लेग। आपने सुना होगा ये नाम, तो ये भी आपको अंडरलाइन करना था, उस दिन मैंने बताया था, तो आपको ये फिर से ये ध्यान में रखना है। ओके, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। दिस कैन help us to save us from the harmful effect of different types of fleas. So in this way we learned two types of harmful insects. One is disease spreading insect and second number is blood sucking insect that are wingless. Okay, अब आज हम देखेंगे stinging insect के बारे में. See page number 46. Some insect like bees and wasps sting. उनको sting होती है. देखो यहाँ पे आपको वो sting दिखाई देती है, ये लास्ट पे लिखा भी है वहाँ पे. ओके, मैं मेरा चेहरा इस तरफ कर लेती हूँ, यहाँ पे भी है. सो दिस इज कॉल्ड स्टिंग, इसे स्टिंग कहते हैं. स्टिंग इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द इंसेक्ट. इंसेक्ट के पीछे के हिस्से में होता है. इट इज़ ऑफन पॉइजनस होता है एंड कॉजेज पेन एंड रेडनेस इन द स्किन. ये पॉइजनस तो होता है और जब ये डंक मारता है वहाँ पे देन हर्ट तो होता ही है, पर स्वेलिंग आता है, रेडिश होता है. तो उसके लिए कुछ लोग कुछ घरेलू नुस्खे भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट होता है. और मेडिसिन तो होता है, क्रीम वगैरह वो भी लगा कर करते हैं. सो दिस इज़ द स्टिंगिंग इंसेक्ट. नंबर इज वास्प्स, देखो वहाँ पिक्चर में दिखाया है, एंड हनी भी सबको पता है. सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट ऑन दिस पेज डाउन साइड यू हैव टू रीड स्पाइडर के बारे में देखेंगे. स्पाइडर एंड इट्स वेब. स्पाइडर और उसका जाले के बारे में देखेंगे. स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट. कीप इट इन योर माइंड की, और अंडरलाइन भी करो कि स्पाइडर इंसेक्ट नहीं होता है. बिकॉज देखो इसके फीचर्स में भी आप देखेंगे तो इट हैज़ 8 लेग्स. इसको कितने लेग्स हैं? 8 लेग्स है. इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स होते हैं, है ना. तो इट कैचेस वेरियस इंसेक्ट फॉर इट्स फूड. अब भूख हर एनिमल्स को लगती है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, है ना. सो इट कैचेस वेरियस इंसेक्ट फॉर इट्स फूड. हाउ ही कैचेस, यू नो, सी स्पाइडर सिक्रेट लिक्विड फ्रॉम इट्स माउथ. अपने माउथ पे से वो एक लिक्विड सिक्रेट करता है, एंड दिस लिक्विड चेंज इनटू अ वेरी थीन थ्रेड व्हेन इट कम इनटू कांटेक्ट विथ एयर. एयर के जब कांटेक्ट में उसके माउथ से निकला हुआ लिक्विड कांटेक्ट में आता है, इट व्यूज दिस थ्रेड इनटू अ वेब. उससे वो नेटवर्क बनाता है, एक जाला बना लेता है. और वो कैसे होता है? वी कैन सी, हम देख सकते हैं उसको. बट दिस थ्रेड इज सो थिन, इतना थिन होता है दैट इंसेक्ट कैन नॉट सी द वेब. इंसेक्ट को वो दिखाई नहीं देता है. हमारे ह्यूमन बीइंग को तो नेकेड आई से दिखाई देता है, बट इंसेक्ट्स को नहीं दिखाई देता. इट इज़ वेरी थिन होता है. दे गेट ट्रैप्ड इन दिस वेब. अब जो इंसेक्ट वहाँ अनायास घुस जाते हैं उसके वेब में, जब वो अंदर घुस जाते हैं, दैट टाइम स्पाइडर क्या करता है? इंसेक्ट को इस तरह से ट्रैप करके अपने जाले में फंसा के ही स्टार्ट ईटिंग. तो उसको स्पाइडर आर ईटन बाय द स्पाइडर. वो इस तरह से स्पाइडर उसको खा लेता है और बैठे बैठे वेब बना के अपना फूड कैच करके खा लेता है. सो ये उसका स्किल है. ओके, तो हमने देखा स्पाइडर एंड इट्स वेब. तो स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट. नीचे के हिस्से में देखो,
ये देखना है हमें, सेविंग अवर सेल्फ फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट, हाउ वी सेव, हम इस तरह से जो इंसेक्ट को है, हमारे क्रॉप्स को कैसे सेव करना है और हमें खुद को कैसे सेव करना है। सो वी कैन गेट रीड ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट बाय यूजिंग नेचुरल मेथड, हमें नेचुरल मेथड तो यूज़ करते हैं, और बाय यूजिंग केमिकल्स कॉल्ड इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड यूज़ करके हम खुद को सेफ रखते हैं और रखना ही चाहिए, है ना। So we often keep dried neem leaves in clothes or apply neem or kerosene oil on wooden furniture, कि ताकि वो दीमक ना लगे, इसलिए वुडन फर्नीचर को हम अगर नीम ऑयल या केरोसिन से ऑयल लगा के रखेंगे बीच बीच में तो ये दीमक नहीं लगेंगे, तो वुडन अपना जो है वुड सेफ रहेगा, अपने वुडन फर्नीचर सेफ रख सकते हैं। खुद को सेफ रखने के लिए बहुत सी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स क्रीम्स आती है, तो यू कैन पुट दैट क्रीम बिफोर गोइंग टू बेड, क्योंकि जनरली हम दिन भर बैठे रहते हैं तो हमें पता चलता है, पर जब हम सोते हैं दैट टाइम वी नो आइडिया कि कैसे मॉस्किटो आता है और डंक मारता है। सो कीप सेफ अवर सेल्फ। सो सम पीपल पुट ऑयल, इवन कोकोनट ऑयल भी यूज़ करते हैं, वो डिपेंड है अपना अपना तरीका। सो दिस हेल्प टू सेव देम फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट। सो फार्मर्स समटाइम्स यूज पेस्टिसाइड फॉर सेविंग देयर क्रॉप्स, और क्रॉप्स को सेव करने के फार्मर तो पेस्टिसाइड्स करते ही है। सो नाउ कीवर्ड्स, लर्न कीवर्ड्स एंड राइट डाउन कीवर्ड्स इन योर CW बुक। ओके, कॉलरा, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन जब होता है दैट इज कॉल्ड कॉलरा। डायरिया मीन्स लूज मोशन। जर्म्स, अ डिसीज कॉजिंग लाइफ फॉर्म। जॉन्डिस मीन्स इन्फेक्शन ऑफ लिवर। Membranous, a thin sheet. Pollen grains means a part of flower. Secret means generate fluids, and sting means a painful bite. Okay, so all words you have to learn carefully. So children, this is homework for you. Write down homework in your CW book. Write any 4 examples of common insects. Write few lines about the insect. Then what is pollination? Write definition of social insects, and 5th है write 3 examples of social insect, जैसे टर्माइट, एंड्स, एंड कौन है, हनी बी। ओके, सो हु आर द पॉलिनेटर, कौन है, वो उनके नाम लिखने हैं। सो दिस इज़ योर होमवर्क। अभी थोड़ा रिमाइंडर दे रही हूँ, तो ये चेक कर लो, चेक योर प्रीवियस होमवर्क, जो आपने किया कि नहीं किया है तो आपको करना है। ओके, अभी कॉर्नर पे लेती हूँ मैं। नेम द 3 insects that give us silk. What does it feed on? Then how does the silk moth views the cocoon, and what is cocoon? Okay, 3। और इससे पहले भी दिया था मैंने, वो भी चेक करो। How is honey collected from a beehive? Then where does bees store the nectar, and what are combs? In previous 2 video I have given this work, so you have to check your previous homework and complete it as early as possible. Okay, so children, thanks for watching this. Have a nice day. God bless you all. Thank you.